Bismillahirrahmanirrahim. Short questions with answers. What is annuity? An annuity is the series of fixed amount or of money paid or received at regular intervals. The interval may be weekly, monthly, and semi-annually, annually, etc. G. Write names of different types of annuities. But there are several types of annuities, but most common used जो हमने पढ़ी है वो है ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी ड्यू या परपेचुइटी। भाई 3 तरह की हमने एन्युटीज पढ़ी हैं जी। डिफाइन ऑर्डिनरी एन्युटी। भाई डिफाइन ऑर्डिनरी एन्युटी, इट इज द पेमेंट if the payments are made at the end of each interval. भाई ordinary क्या होगा? If the payments are made at the end of each interval, then it is called ordinary annuity. जी अगला है define annuity due. If payments are made at the beginning of each interval, then it is called annuity due. जी If payments are made at the beginning of each interval, then it is called annuity due. जी क्वेश्चन नंबर 3 है जी 5. भाई write a formula for finding present value. Write formula for finding present value. The formula for finding the present value of a future sum can be derived from the compound interest formula as a बराबर होगा p into 1 plus r की पावर n. तो p बराबर होगा a over 1 plus r की पावर n. भाई p बराबर होगा a over 1 plus r की पावर n, where p से क्या मुराद है? प्रेजेंट वैल्यू, a से मुराद है अमाउंट पेएबल इन n years, और r से मुराद है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और n से मुराद है नंबर ऑफ ईयर्स। n से क्या मुराद है? नंबर ऑफ ईयर्स। n मीन नंबर ऑफ ईयर्स जी। डिफाइन परपेचुइटी। बाय डिफाइन परपेचुइटी, इफ एन्युटी स्टार्ट्स ऑन अ सर्टन डेट। भाई इफ एन्युटी स्टार्ट ऑन अ सर्टन डेट एंड कंटिन्यूज फॉर infinite periods, then annuity is called perpetuity. भाई जैसे वो जो पेंशन होती है ना, उसका स्टार्ट तो पता होता है कि यहाँ से शुरू हुई, लेकिन उसका एंड नहीं पता होता, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं होता जी। जब तक लाइफ है, ठीक है जी, और उस वक्त तक वो पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन हमें उनके वेयर अबाउट्स का नहीं पता होता कब उसकी डेथ होगी जी। लिहाजा क्योंकि अल्लाह को ही बेहतर पता है। डिफाइन परपेचुइटी, if annuity start on a certain date and continue for indefinite period, then annuity is called perpetuate जी। write a formula for annuity, ordinary annuity. भाई write a formula for ordinary annuity. भाई write formula for annuity ordinary जी। the formula for to find the sum of ordinary annuity, we use the following formula. भाई S बराबर होगा कैपिटल R, कैपिटल S बराबर होगा कैपिटल R इंटू ब्रैकेट शुरू 1 प्लस R की पावर n माइनस 1 ओवर स्मॉल r। भाई इधर देखिएगा, वेयर कैपिटल R से मुराद है फिक्स्ड अमाउंट, कैपिटल R से मुराद है फिक्स्ड अमाउंट पेड रेगुलरली, S से मुराद है सम ऑफ एन्युटी, R से मुराद है rate of interest, and some rather number of periods. Question number 8 है, write a formula for present value of perpetuity. By write the formula for present value of perpetuity. By we know that annuity is said to be perpetuity if it start on G on a certain date and remain continuous for unlimited period.
Therefore, its sum is not possible. Its sum is not possible, but we can find present value of perpetuity by following formulas. भाई P बराबर होगा जी कैपिटल P बराबर होगा कैपिटल R ब्रैकेट शुरू 1 minus 1 over 1 plus R की पावर n over R as n approaches to infinity, then 1 over 1 plus R की पावर n approaches to 0. So therefore perpetuity का फार्मूला बन गया P is equal to कैपिटल R over स्मॉल R. भाई लिहाजा प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी जी कैपिटल R over स्मॉल R, वेयर R से मुराद एनिटी और स्मॉल R से मुराद रेट ऑफ इंटरेस्ट. जी क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड अमाउंट of annuity when rupees 500 is invested for each of 5 years at the end of each year if R हमारे पास है 5% पर एनम. भाई कैपिटल R हमारे पास क्या जी 500, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, एन हमारे पास 5 years, तो फार्मूला S बराबर होगा कैपिटल R इंटू 1 प्लस R की पावर n माइनस 1 ओवर R. भाई कैपिटल R स्मॉल R और n की वैल्यूज पुट करें वी गेट 2800. भाई वी गेट 2800 जी. फाइंड द अमाउंट व्हेन 1000 is invested at the end of each year for 5 years if R हमारे पास है 4% compounded annually. भाई कैपिटल R हमारे पास है 1000, एन हमारे पास 5 ईयर, आर हमारा 4%, तो एस बराबर होगा कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 ओवर आर. हमने कैपिटल आर स्मॉल आर और एन की वैल्यू रखी, वी गेट 5416.32 जी. ए पर्सन वांट्स टू डिपॉजिट रुपीज 100 at the end of each month at 6% compounded monthly. What will be the amount at the end of the 5 years? At the end of the 5 years, no problem. If a person wants to deposit rupees 100 at the end of each month at 6% compounded monthly, what will be the amount of the at the end of the 5 years? भाई कैपिटल हमारे पास क्या जी 100 एंड हमारे पास 5 years, उसको भैया 12 से 60 मंथ मान जाएगा जी. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या जी 6%, उसको भैया 12 से डिवाइड किया और 100 से फिर डिवाइड किया तो 0.05 आ गया, 0.05 आ गया, 0.005 आ गया. तो यूजिंग कैपिटल एस बराबर है कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 ओवर आर. भैया आपने कैपिटल आर स्मॉल आर एन की वैल्यू रखी, वी गेट 6977. वी गेट 6977 जी. जी फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू. फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू व्हेन रुपीज 1000 is invested each year at the beginning of each year for 5 years at 4% rate of interest. भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या जी 4% जी. फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू. आपने अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू निकालनी है. व्हेन रुपीज 1000 इज इन्वेस्टेड ईच ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 5 years. बिगिनिंग में होगा तो एन्युटी ड्यू होगी जी. तो भाई आर हमारे पास कैपिटल हमारे पास 1000, एन हमारे पास 5 years, आर हमारे पास 4%, तो फार्मूला हमारे पास क्या होगा जी कैपिटल आर एस इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर की पावर एन प्लस 1 माइनस 1 ओवर आर माइनस आर. भैया आपने क्या किया जी कैपिटल आर स्मॉल आर और एन की वैल्यूज रखी, इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट 5632.97. भाई हमारे पास 3632.97 जो है ना हमारा आंसर आएगा जी. क्वेश्चन नंबर है कि हमारे पास 13. व्हाट इज द अमाउंट इन सेविंग
account if rupees 50 is deposited at the beginning of each if 6 months for 5 years at rate of 6% compounded semi annually. भाई अब ये एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है. कैपिटल हमारे पास 50, आर हमारे पास क्या जी 6% है ना. 6% उसको भैया 100 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया जी 6% को 2 से डिवाइड किया और फिर 100 से डिवाइड किया 0.03 आ गया. एन हमारे पास क्या जी 5 ईयर्स, उसको भाई जनाब ने किससे मल्टीप्लाई 2 से, ताकि 10 हाफ ईयर्स बन जाएंगे जी. तो प्लीज एस बराबर है कैपिटल एस बराबर है कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर की पावर एन प्लस 1 माइनस 1 ओवर आर माइनस आर. भैया आपने कैपिटल आर स्मॉल आर एन की वैल्यू रखी एंड वी गेट 590.39. भाई हमारे पास जो आंसर आएगा वो 590.39 आएगा जी. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव जी फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू. भाई क्वेश्चन नंबर 14 है. फाइंड द फ्यूचर वैल्यू. आपने क्या निकालनी है भाई फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू फॉर रुपीज कितने 1500 ईच मंथ फॉर 3 ईयर्स इफ आर हमारे पास 10% कंपाउंड मंथली. भाई आर हमारे पास क्या जी कैपिटल हम 1500, स्मॉल आर में होगा 12 जी 12 भैया 1 ईयर है ना जी. हमारे पास क्या जी एनुअली जी ऑफ एंड ड्यू रुपीज फॉर 3 ईयर. तो भाई क्या होगा जी आर हमारे पास क्या जी 12%, उसको भैया आपने 12 से डिवाइड किया, फिर 100 से डिवाइड किया 0.01 आ गया जी. और एन हमारे पास 3 ईयर्स, तो भैया उसको 12 से मल्टीप्लाई 36 मंथ बन गया जी. कैपिटल एस बराबर होगा कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर की पावर एन प्लस 1 माइनस 1 ओवर आर माइनस आर. आपने क्या किया कैपिटल आर स्मॉल आर और एन की वैल्यू लगाई एंड वी गेट 6551.47. ये हमारा आंसर आ जाएगा जी. क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ रुपीज 1500 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 2 years if money is worth 8% compounded semi annually. भाई नो प्रॉब्लम. कैपिटल आर हमारे 1500 जी, स्मॉल हमारे पास आर हमारे पास 8%, उसको 2 से डिवाइड किया तो 4% होगा, उसको 100 से डिवाइड 0.04. भाई एन हमारे पास क्या जी 2 ईयर्स, तो भैया उसको 2 से क्या किया जी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 हाफ ईयर्स बन जाएंगे जी सेमी एनुअल. भाई P इज इक्वल कैपिटल P इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू 1 माइनस 1 प्लस R की पावर माइनस n ओवर R जी. तो भैया देखें आपने यहाँ पे क्या किया जी कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर की वैल्यू एन की वैल्यू रखी, इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट 5,444.84 जी. क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड द फार्मूला राइट द फार्मूला फॉर अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू. भाई राइट फार्मूला फॉर अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू. तो भैया देखिए फार्मूला to find the sum of annuity due we use the following formula. भाई कैपिटल एस बराबर होगा कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर की पावर एन प्लस 1 माइनस 1 ओवर आर माइनस कैपिटल आर जी. ये वाला फार्मूला हमने ड्राइव भी किया, ये आपने याद रखना चाहिए.